Bismillahirrahmanirrahim. So it's our lecture number 4. लास्ट वीक में मिस हुआ था. अभी तक हमने जो 3 लेक्चर्स किए हैं that was about the basics of economics. Okay, in which we have discussed the basic terminologies, the basic terms which are involved in the economics. Uh, from this lecture, now we will start some formulas or some analysis which are important in the economics, in which is used for the comparison between among the different projects based on economics. As we have discussed that economic is decision in term of money. Okay, so if we have suppose 2 projects and now we are comparing that which project is better than another one in term of money. ओके कि आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिससे आपके पास ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा रिवेन्यू हो, जिसके एक्सपेंसेस कम हो, जिसमें लॉसेस कम हो. ठीक है, तो आपने सम एनालिसिस करना होगा. So today we will discuss some different formulas which is used to find out the future value of the present amount. ओके अगर आज आपके पास सम एक्स अमाउंट है तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी. ओके सपोज इफ टुडे यू हैव एक्स अमाउंट and for example you invest it, suppose this is the present amount, you invest it for n year, and each year suppose you got this much profit, so what you will have in future. ओके तो अगर आज आपके पास सम अमाउंट है उसको आप इन्वेस्ट कर लें इन पीरियड्स के लिए और पर पीरियड में आपको इतना इनकम मिल रहा है, तो फ्यूचर में आपके पास कितना अमाउंट होगा. फिर दूसरा ये है कि सपोज अगर फ्यूचर में आपको इतना अमाउंट चाहिए इतने साल बाद और हर साल आपको इतना इनकम मिल रहा है, तो आज आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा. सो टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट अमाउंट और टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट, ये दो टर्म जो है दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आज आपके पास सम अमाउंट है तो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा या फ्यूचर में उसका क्वांटिटी क्या होगा. और अगर फ्यूचर में यू आर एक्सपेक्टिंग सम अमाउंट, सो व्हाट यू विल नीड टू इन्वेस्ट टुडे. ठीक है, सो ये दो जो फैक्टर्स हैं या ये जो दो फार्मूलाज हैं इसकी बेस पे देन वी आर डूइंग द इकोनॉमिकल एनालिसिस. दैट सपोज इफ यू आर स्टार्टिंग टू बिजनेसेस, ओके सपोज यू आर स्टार्टिंग टू बिजनेसेस, तो एक बिजनेस में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा बिजनेस में आप इन्वेस्ट कितने कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको इस बिजनेस से कितना मिलेगा और दूसरे बिजनेस से कितना मिलेगा. सो देन यू कैन डू द डिसीजन दैट व्हिच बिजनेस इज मोस्ट if you beneficial. Okay, so let's see. Using the standard notation we find the present amount can grow into future amount. See, as we have also discussed the time value of money, so if you have present amount P, okay, for example, if you invest it or suppose you give it as a loan to someone else, yeah, simply you can invest it in an organization for this much periods, suppose 10 years, 8 years, 6 years, and for example each year you are getting this much profit. So after this n year, how much amount you will have, that is the future amount. So the future amount is equal to present amount into 1 plus interest rate, profit rate, earning rate to the power the number of periods, मीन कितनी पीरियड के लिए, कितने साल के लिए आपने वो इन्वेस्टमेंट किए हैं. ठीक है, सो ये इक्वेशन जो है ये इकोनॉमिक्स का बेसिक इक्वेशन है.
जिस तरह हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा बेसिक इक्वेशन क्या होता है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये इकोनॉमिक्स की बेसिक इक्वेशंस है। सपोज इफ यू हैव द प्रेजेंट अमाउंट पी and for example if you invest it for this much period at a rate of I, so in future you will have this much amount. Okay, in similar way for example uh, in future if you are expecting that you will have this much amount after n years, in each year suppose you expect that you will get the profit I, so currently you will have to invest this much p amount. ठीक है, मीन फ्यूचर से टुडे की जो अमाउंट है वो फाइंड करना, या टुडे इफ यू हैव दिस मच अमाउंट सो हाउ मच यू विल हैव इन फ्यूचर। ठीक है, तो अब देखिए ये इंटरेस्ट रेट जो होते हैं समटाइम दीज आर सम स्टैंडर्ड रेट्स, फॉर एग्जांपल 5%, 6%, 8%, 10%, and suppose you are investing it for 5 years, 10 years, 15 years, for 20 years. So see this term can become a constant. Okay, so this is called the single payment compound factor, and some standard tables are available that suppose you have invested p amount for 10 years at a rate of 8%. Okay, suppose each year you are getting 8% profit and you have invested it for 10 years. So just put it here 1 plus 8% to the power 10. So you will get just a value, you will get just a factor. Okay, so that is called the single payment compound factor, and these and its values are available in standard tables. Like see here, a टेबल नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। Okay, now see it is for interest rate of 8%, and these are the number of years. So suppose you have invested p amount, mean presently you have this much amount, you have invested it for how much year? For example 10 year, and each year you are getting 8% profit. So see after 10 year how much you will have? So we know that future value will be equal to present value multiplied by 1 plus I to the power n. So here you will have to put 8% n to the power 10, and then you will have to do calculation. So just for the simplification purposes, this factor is already available in calculated tables. Suppose that interest rate is 8% and duration of investment is 10 years, and see we are finding out what the future value of the present amount. So इसको हम इस तरह रीड करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, what will be the future value if p is given. See ये जो f dash p है ना, इसका मतलब क्या होगा? To find future value, p is given at I interest rate for n period. समझ आ रहे? See you will have to read it like this one. If मीन ये जो फर्स्ट टर्म है ना ये आपने कैलकुलेट करना है, मीन फ्यूचर आपने कैलकुलेट करना है. सो इफ गिवन पी, पी इज गिवन कि प्रेजेंटली आपके पास कितना अमाउंट है और इसको आप इतने इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर लें इतनी पीरियड के लिए, तो फ्यूचर में आपके पास कितना अमाउंट होगा. सो इफ गिवन पी एट आई इंटरेस्ट रेट फॉर पर पीरियड ऑफ एन. ठीक है, तो अब टेबल में देखें यहां पे वी हैव टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू, p इज गिवन, मीन इसको इस तरह रीड कर ले,
F given P. P is given and we have to find out the future amount. So अब देखिए ना, यहां पे आ जाएं, ये फैक्टर आएगा आपके पास। तो अब प्रेजेंटली आपके पास कितना अमाउंट है? P अमाउंट है, इसके साथ जस्ट ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर लें, 2.1589। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 + 8% टू द पावर 10 पुट कर लें तो आपके पास ये 2.1589 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फैक्टर होते हैं ना, उसकी ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेबल्स अवेलेबल होते हैं, इसको इंटरेस्ट रेट टेबल्स कहते हैं। तो सपोज आपका अर्निंग रेट कितना है पर ईयर और कितनी ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इस कॉलम से आप ईयर्स ले लें और हर पर्सन के लिए एक टेबल होता है, तो वहां से आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे देखें, अगर आपके पास फ्यूचर अमाउंट गिवन है कि फ्यूचर में सपोज आपको 30,000 चाहिए, सो हाउ मच यू विल नीड प्रेजेंटली। सो ये हम किस तरह रीड करेंगे? P गिवन F इज गिवन, फ्यूचर इज गिवन, हमने करंट अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो फी गिवन F एट इंटरेस्ट रेट I फॉर n पीरियड्स। ठीक है, तो ये P गिवन F है ना, तो जब आप टेबल यूज करेंगे तो फिर आप ये वाला कॉलम यूज करेंगे। प्रेजेंट आपने फाइंड करना है और फ्यूचर गिवन है, तो यहां से ये फैक्टर लेके वो फ्यूचर अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो यू विल गेट द प्रेजेंट अमाउंट। समझ आ रहा है इस चीज की? जी सजाद खान, समझ आ रहा है? जी सजाद खान, आ रही हो दियर? मुनीब कयूम, समझ आ रहा है कि नहीं? भागे हुए हैं सब मेरे ख्याल में, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। सर हमें तो यस क्लियर सर, है। समझ गए। अच्छा, नहीं मैं जिससे पूछ रहा हूँ उससे पता चल रहा है ना कि वो यहाँ पे है कि नहीं। जी सर। मुनीब और क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, अब देखें, we can use these to find economical equivalent values at different points. I mean, either in future, either in present. So just see into the example, $2,500 at time zero. At time zero mean presently या currently. ठीक है, so currently if you have $2,500 and for example you invest it for 6 years at an interest rate of 8%. So after 6 years, how much amount you will have? Just understand the question. Currently you have $2,500 and for example you invest it for 6 years at an interest rate of 8%. So after 6 years, how much amount you will have? So either you can use the direct formula that the present amount is equal, sorry, the future amount is equal to present amount, that is $2,500 multiplied by 1 plus interest rate, which is 8%, yeah, 0.08 to the power 6. So you will get 3967. Okay, or just take the factor from table. See, we have to find out the future amount, present amount is given, interest rate is 8% and investment is for 6 years. So just take this factor, see, 1.5869. so multiply this factor with 2,500, so directly you will get, see, 2,500 multiplied by, this is just already calculated factors for each percent of
interest in per different years. So directly you can take this table or you can calculate it. The answer will be same. Okay. So currently if you have $2,500 and suppose you invest it for 6 years at a earning rate of 8%, so after 6 years you will have $3,967. So that is the future amount. Okay. Now see, 3,000 at the end of year 7 mean after 7 year. Suppose after 7 year, if you have $3,000, so that is the future amount. So that $3,000 will be equivalent to how much today if the interest rate is 6%. Okay, mean अगर 7 साल बाद आपके पास 3,000 अमाउंट होगा 6% अर्निंग रेट के बाद, तो करंटली आपको कितना चाहिए? So see, directly if you want to calculate it from formulas, so the present value will be equal to future value. So sorry, present value will be equal to future value 3,000 multiplied by 1 plus that interest rate to the power minus 7. Okay, if you want to calculate the present, तो फिर यहाँ पे minus होगा ना, so you will get 1995. So after 7 years, if you have $3,000, then today you will have to invest $1995 at earning rate of 6%. Okay, and directly you can also do from table. 6% इंटरेस्ट रेट के टेबल पे जाएं और इन्वेस्टमेंट कितना है, 7 ईयर का है. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट अमाउंट. द फ्यूचर इज गिवन, सो प्रेजेंट गिवन एफ. जस्ट अंडरस्टैंड द reading of this table. See, we are finding out the present value, the future is given, so present given f. Okay, and this table is for 6%. So for period of 7 years, that factor will be 0.6651. So in future, if you have $3,000, mean after 7 years at an earning rate of 6%, so just multiply it with that factor 0.6651. So currently you will need $1995. Okay, so this is just to find out the future amount of the present amount and to find out the present amount of the future amount. Okay, so see, also we can explain it with the help of the cash flow diagram which we have discussed in the previous class. See, if the present amount is given, you invest it for n periods. In each period you are getting this much earning rate, this much profit rate, this much interest rate. So in future how much you will have. Okay, and similarly if in future you will have this much amount after n years at interest rate of this one, earning rate of this one, so how much you will need to invest presently. आज आपने कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा. ठीक है, so that is the present given f. ठीक है, so the term which are in the parenthesis, that is called the factor, and its values can be directly taken from the table and just multiply it with the present amount and you will get the future, or multiply it with the future, you will get the present. Okay, a person deposit $5,000 into an account which pay interest of 8%. The amount in the account after 10 years will be.
So see, the investment period, the investment time is 10 year, and the earning rate is 8% per year. So just take the factor from 8% interest table. See, it is the 8% interest table. The investment period is 10 years, and we are interested to find out the future amount of the present amount. So just multiply 2.1589 to this amount, ये जो 5,000 है. Okay, so you will get $10,794. Okay, or also you can directly do it like this one, that 5,000 multiplied by 1 plus interest rate is 0.08 to the power 10. So you will get 10,794. Yeah, $10,795. Okay, and graphically you can represent it like here. Suppose you invest 5,000 at period 0, and each year you are getting 8% profit. So after 10 year you will have $10,794. Okay, similarly, suppose if someone plan to, for example, purchase an equipment, yeah, for example, uh, if someone plan that I will buy a vehicle, I will buy a car at 2030, मीन 2030 में सपोज अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, तो सपोज उस टाइम उसकी जो अमाउंट है वो $50,000 है. या इस तरह कर ले कि सपोज someone want to buy a car in 2025, मीन 5 साल बाद आपने गाड़ी खरीदनी है, और 5 साल बाद उसकी जो प्राइस होगी दैट इज $50,000. सो आज अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लें और इन्वेस्टमेंट से हर साल आपको 10% प्रॉफिट मिल रहा है, सो हाउ मच यू विल नीड टुडे. आज आपको कितना चाहिए जिसको आप 10% पे इन्वेस्ट कर लें, ताकि 2025 में आपके पास $50,000 हो. So you need to find out the future amount. Sorry, the present amount. Okay. Now see, again, either you can directly do it by equation, that the present amount of the future amount will be equal to P is equal to F 1 divided by 1 plus I. Suppose you are going to invest it at this much rate and you need it for N. So here we have N is 5, I is 10%, the future amount is 50,000. So directly you can put it here, or you can take the value from table. Okay, table से just ले लेना 10% interest table से, और n जो है वो 5 होगा. प्रेजेंट गिवन, सॉरी प्रेजेंट फाइंड करना है, फ्यूचर गिवन है. सो प्रेजेंट गिवन F कॉलम से आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, इसको आप प्रेजेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लें. सो 31,045 या 31,050 ये वैल्यू आ जाएगी. सो टुडे इफ यू हैव दिस मच अमाउंट एंड सपोज यू इन्वेस्ट इट फॉर 5 years at a rate of 10%, so after 5 years you will have $50,000. Now see graphically, at the future you need $50,000. Okay, so how much you will have today, and the earning rate is 10%. Clear? कोई क्वेश्चन है मुराद? नो सर, क्लियर है सर. अच्छा जी, सजाद. सदाम हुसैन क्लियर? जी सर क्लियर है. सजाद कहाँ थे आप पहले?
सर वो माइक काम नहीं कर रहा था मेरे ख्याल में वो उसका जो सेटिंग में म्यूट हुआ था तो अभी अच्छा अच्छा। सो यहाँ तक हमने ये दो फैक्टर कंसिडर डिस्कस की ना. If you have the present amount, so how much it will be equal to in future if you invest it at I rate for n periods. And suppose in future if you need the given amount, so how much it will be equivalent today. For example, if it is invested for n periods at a rate of I. Now suppose a p amount is given, means some amount is given at period 0. Okay, in each year some constant amount is coming. या इसको इस तरह नहीं करते. सपोज अगर if you have present amount p, okay, and suppose you invest it at I rate for n period, so each year how much amount you will get, that is called NVT. इसको NVT कहते हैं कि each year आप एक फिक्स अमाउंट जो है आपके पास हो. या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि हर साल सपोज अगर आज मैं 1,000 रुपए डिपॉजिट कर लूं, एक साल बाद में 1,000 डिपॉजिट कर लूं, फिर दूसरे साल बाद में डिपॉजिट कर लूं और उस पे आई इंटरेस्ट भी आ रहा है. सो अगर 10 साल तक, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सी सपोज फॉर 10 years each year I am depositing या I am investing 1,000 amount, and that investment is giving me I earning या profit rate. So how much I will have in future, या how much I will have after 10 years, how much I will एक्सक्यूज मी have. सर. जी सर बैंक में बिल्कुल इस तरह होता है ना जी. सर? बैंक में जो मतलब सूद पे जो तो लोग पैसे जमा करते हैं सर, बैंक में बिल्कुल इस तरह मेरे नहीं ख्याल में होता है. नहीं नहीं, वो उस तरह नहीं है. वो तो आपने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट किया होता है और हर जी साल सर. उसमें इंटरेस्ट आ रहे हैं. तो 10 साल बाद आपका अमाउंट कितना होगा वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी. इसका मतलब नहीं ये सर, है. इंटरेस्ट आता जी है ना हाँ सर? मतलब लेट सपोज आपको 500 रुपए मिलते हैं ना हर माह, तो उसके ऊपर भी हाँ. इंटरेस्ट आता है ना? अगर हाँ वो इसके साथ अगर हर साल आप सपोज आज आपने 1,000 डिपॉजिट कर दी, तो एक साल तो उस पे इंटरेस्ट आएगा, लेकिन एक साल बाद आप 1,000 न्यू अमाउंट डिपॉजिट कर लें, तो अब आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 2,000 है. सपोज थर्ड ईयर के बाद वो पहले से तो इंटरेस्ट आ रहा है ऑलरेडी डिपॉजिटेड अमाउंट पे, लेकिन हर साल आप न्यू बी एडिशन कर रहे हैं उसके साथ एक कांस्टेंट अमाउंट, उसको एनवीटी कहते हैं. ठीक है. सो again it becomes that suppose what will be the present value if you are depositing. एक्सक्यूज मी सर. जी सर जो हम हर साल जो इसमें इजाफा करते हैं ना, जो पैसे जमा करते हैं, इसको इन्विटी कहते हैं. जी जी. अगर एक कांस्टेंट अमाउंट आप ईच ईयर डिपॉजिट कर रहे हैं या सम कांस्टेंट अमाउंट आप ईच ईयर विदड्रॉ कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो उसको दोनों को एनवीटी कहते हैं. ओके एनवीटी कहते हैं. ओके, ओके या ओके पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा. ओके. थैंक ठीक यू है. जस्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एग्जांपल. सी if you had $50,000, sorry, $500,000 in investment or in an organization which is earning 10% per year, so how much you can withdraw each year. अब देखें ना, अगर अर्निंग नहीं आ रहा, if the profit is zero, remember, suppose if the profit is zero, if the earning is zero and you have $500,000, सो 25 साल के लिए हर साल आप इससे कितना विड्रॉ कर सकते हैं? जी कोई बता सकता है?
20,000 आएगा ना, आई थिंक। सपोज अर्निंग क्या है, वो 0 है, प्रॉफिट क्या है, वो 0 है, और आपके पास जस्ट $500,000 है, आपने अपने लिए रखे हुए। सपोज आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आपने बैंक में इतना अमाउंट रखा हुआ है, और हर साल सपोज आपका जो खर्चा है वो 25 साल के लिए आपने प्लान किया हुआ है कि इस अमाउंट को मैं 25 साल में सपोज जो है खत्म करूंगा। तो हर साल आप इससे कितना अमाउंट जो है फिर लेंगे, वो तो 20,000 लेंगे। $50,000। यस सर। जी जी 50,000। 20,000, अच्छा 50 सर। कितना, 50,000 सर। ये 500,000 जो है उसको 25 पे डिवाइड कर लें, ये कितना आ सर। रहा है, कैलकुलेटर है किसी के पास? सर ये तो हम मतलब इसको खत्म करना चाहते हैं सर। एग्जैक्टली मैं समझा रहा हूं ना। सपोज आपके पास 5 लाख रुपए हैं, उस पे अर्निंग नहीं आ रही, वो फिक्स्ड अमाउंट है, तो 25 साल में हर साल आप उससे कितना अमाउंट लेंगे फिर, कि वो 25 साल हो जाए आपके, 25,000, कितना आएगा? 20,000 आ रही है सर। अच्छा 20,000 है, ठीक है, क्लियर ना। अब देखें, सपोज यू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या सपोज जस्ट जो इन्वेस्टेड, और हर साल उस पे 10% अर्निंग भी आ रही है, तो फिर आप 25 साल के लिए हर साल कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। सो सी दैट विल बी द एनवीटी, दैट द प्रेजेंट अमाउंट इज गिवन, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एनवीटी, you have invested that amount at I interest rate for n period। ये इस तरह होगा फिर, ठीक है। we have to find out the annual amount, presently we have some amount, we invest it for this much rate for this much periods, तो हर साल उससे आप कितना अमाउंट फिर विड्रॉ करेंगे, समझ आ रहा है इसकी? सो आइदर यू कैन डू इट बाय फार्मूलाज, कि करंटली आपके पास पी अमाउंट है, इसको आपने आई रेट पे इन्वेस्ट कर दी, तो इतने पीरियड में हर साल आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, जस्ट इसमें आई एन है ना। प्रेजेंटली हमारे पास $500,000 है, और 25 साल हमने इसको खत्म करना है, और हर साल उस पे 10% इंटरेस्ट आ रहा है, तो ईच ईयर यू कैन विड्रॉ $55,100, ठीक है। ऑल्सो दिस थिंग कैन बी टेकन फ्रॉम टेबल, ये हमारे पास टेबल भी है, लाइक 10% जो इंटरेस्ट रेट होगा है ना, उस टेबल पे जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास जो है सपोज ये 8% का है ना, तो इस तरह 10% का जो इंटरेस्ट टेबल होगा, और साल कितने हैं, वो 25 हैं। अब देखें, प्रेजेंट अमाउंट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द एनवीटी, सो सी ये ए गिवन पी, ये कॉलम फिर आपने कंसिडर करना होगा। एनवीटी फाइंड करना है, प्रेजेंट अमाउंट गिवन है ना, तो जो 10% टेबल होगा इंटरेस्ट रेट का 25 साल के, आप आ जाएं एनवीटी गिवन पी पे, तो ये टर्म जो है या ये फैक्टर जो है, ये आप प्रेजेंट अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो यू विल गेट द एनवीटी। क्लियर? प्रेजेंट एनवीटी गिवन प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी सर, ये फार्मूला थोड़ा समझे सर। जस्ट अ मिनट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फार्मूलाज में तो जस्ट आई एन और पी है ना। प्रेजेंटली यू हैव दिस मच अमाउंट, you have invested it for n years at a rate of I, so हर साल आप उससे कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? यस सर।
सर ये नीचे जो दिया जी गया है सर, इसमें मतलब साइन वगैरह नहीं है। ये ए इज इक्वल टू 500,000। यहाँ पे यस सर। किस तरह साइन वगैरह नहीं है? मतलब इसको सम करेंगे या माइनस करेंगे एक दूसरे से, या क्या करेंगे? नहीं, इसका तो जस्ट ये मतलब है कि एनवीटी हमने फाइंड करना है, पी इज गिवन एट इंटरेस्ट रेट 10% फॉर पीरियड ऑफ 25। तो ये आपने टेबल से लेना होगा ना, 10% इंटरेस्ट टेबल से 25 ईयर्स पे ए गिवन पी कॉलम से, ये आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। ये फैक्टर आप प्रेजेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लें, सो यू विल गेट द एनवीटी। ओके सर, इससे ठीक है, एक इसकी फैक्टर हमें टेबल से मिल जाएगी। एग्जैक्टली अगर फार्मूला यूज करते तो फिर फैक्टर की जरूरत ही नहीं है ना। आई की जगह पे 10% पुट कर लें, मीन 0.1, और एन की जगह 25 पुट कर लें, और पी की जगह 500,000 पुट कर ले, अगेन यू विल गेट दिस वैल्यू। सो जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस कि आप कैलकुलेशन से बच जाए तो डायरेक्टली टेबल को यूज कर लें। ठीक है, ओके सर। नाउ सी finding the present amount from a series of NVT cash flows. Just देखें how much you will need today. Now we have to find out the present. How much wool is needed today to provide an amount of 50,000 each year for 20 years at 9% interest rate. अब मैं आप लोगों को जस्ट समझाऊं एक एग्जांपल से। सपोज अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी यतीम को, किसी अर्पन को सपोज आप सपोर्ट कर रहे हैं ना। सपोज आपने उसको कह दिया कि मैं 20 साल तक आपको सपोर्ट करूंगा, समझ आ रहे हैं? ठीक है, आप उसको 20 साल तक सपोर्ट करेंगे, तो हर साल उसका जो खर्चा है सपोज वो 50,000 है। ठीक है, तो आज आप कितना अमाउंट इस तरह इन्वेस्ट कर लेना कि उस पे वो प्रॉफिट आ जाए, और वो अमाउंट जो है वो 20 साल तक वो बंदा जो है वो यूटिलाइज कर ले एट अ रेट ऑफ 50,000 पर ईयर। तो ये जो 50,000 पर ईयर यूटिलाइजेशन है ये एनवीटी है। तो 20 साल मीन हर साल आपको 50,000 चाहिए, तो ये 20 आपका एन है। तो आज आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा? 9% प्रॉफिट रेट पे। तो प्रेजेंटली आपको कितना चाहिए कि 20 साल तक हर साल आप 50,000 उससे विड्रॉ कर लें। तो नोटेशन क्या होगा? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रेजेंट अमाउंट। एनवीटी इज गिवन एट अ इंटरेस्ट रेट फॉर इन पीरियड्स। सो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फार्मूला। ठीक है, कि एनवीटी आपका क्या है? 50,000 है, आई जो है वो 9% है, एन जो है वो 20 ईयर्स है। तो प्रेजेंटली आपको कितना अमाउंट चाहिए? या आल्सो यू कैन टेक इट फ्रॉम द टेबल। 9% इंटरेस्ट रेट का जो टेबल होगा उसमें 20 ईयर्स जो है, देखिए सपोज ये टेबल जो है ये 6% का है ना, इस तरह 9% का एक टेबल होगा। उस 9% टेबल से ये जो 20 ईयर्स है इस पे आप आ जाए, ये वाला देखें। प्रेजेंट हमने फाइंड करना है ना, एनवीटी गिवन है, प्रेजेंट गिवन एनवीटी। तो इस कॉलम में ये फैक्टर होगा, तो जस्ट ये फैक्टर जो है वो एनवीटी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो वो फैक्टर अगर आप ले लें तो वो आपके पास ये आएगा, ये एनवीटी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लें। सो ये 4,56,427। सपोज if you invest this much amount today
at an interest rate of 9%. So each year you can withdraw $50,000 for 20 years. समझ आ रहा है? Any question? जी क्लियर है सर। नहीं है सर, question नहीं है। देखिए ना, सपोज अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना, एक सॉलिड मनी आपने डिपॉजिट करना है कि हर साल आप उससे 50,000 खर्च कर लें, तो फिर 20 साल के लिए आपको कितना चाहिए होगा? जी सर फार्मूले से मालूम कर लेंगे। नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ना, अगर इंटरेस्ट जीरो है, मीन आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना, जस्ट अमाउंट आप आज रखें कि 20 साल तक वो आपका हो जाए तो 50,000 पर ईयर के हिसाब से, 10 लाख 20 तो पे फिर आपने डिवाइड कितना करेंगे रखना सर। होगा? 10 तो लाख कितना रखना होगा? 10 10 लाख लाख। ठीक है, 10 लाख। और अगर आप उसको इन्वेस्ट कर लेना 9% इंटरेस्ट रेट पे, तो फिर आज आपको तकरीबन 4,56,000 चाहिए होगा। जस्ट अंडरस्टैंड दी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट अमाउंट इफ यू इन्वेस्ट इट एट सम इंटरेस्ट, इफ यू इन्वेस्ट इट एट सम प्रॉफिट। ओके, वो इंटरेस्ट को डायरेक्टली आप वो सूद के साथ कनेक्ट ना करें ना, आप उसको एक हलाल बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले, तो जाहिर बात है यू कैन गेट सम प्रॉफिट रेट, सम अर्निंग रेट। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर हम मतलब इंटरेस्ट पे नहीं है और हम इसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लॉसेस की भी चांसेस होते हैं ना सर? so you can just take the average profit rate. Okay, you can take the average profit rate. Also then you can account the inflation rate, जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि वे जो मनी है, जो कैश है, उसकी परचेजिंग पावर भी डिक्रीज होती है ना। ये अगर सर सपोज एक साल पहले आपके पास 50,000 थे ना, तो 50,000 पे आप जो है 1 तोला सोना जो है वो खरीद सकते थे। आज आप उस 50,000 पे 1 तोला सोना नहीं खरीद सकते, उसके परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सपोज अगर मनी जो है उसकी वैल्यू 5% डिक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, और सपोज आप 8% प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका क्या होगा? 3% होगा। तो इन्फ्लेशन आपने काउंट करना है, और ये जो इंटरेस्ट हम काउंट करें ये एवरेज प्रॉफिट होता है। ठीक है, आपने देखना होता है ना कि लॉसेस आ सकते हैं, लेकिन बाज बिजनेसेस इस तरह होते हैं कि वो सिक्योर बिजनेसेस होते हैं, उसमें लॉसेस की चांसेस बहुत कम होते हैं। सो देन यू कैन टेक द एवरेज प्रॉफिट रेट और अर्निंग रेट। ठीक है, ये सर या आजकल एक कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो दे रहा है कि वो एवरेजली 7% से 20% तक आपको प्रॉफिट देगा अगर आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर ले। तो ये चीज जो है एक्चुअली वहां से फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके सर। ओके, तो देखिए, सपोज अ केमिकल इंजीनियर believes that by modifying the structure of a certain water treatment plant, his company would earn an extra 5,000 per year. ये एग्जांपल को समझे। सपोज एक ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, आप लोग जो है उसको स्टडी कर रहे हैं ना एनवायरमेंटल को। तो अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वाटर जो ट्रीट होते हैं तो आप पैसे चार्ज करते हैं ना फिर पब्लिक पे, इस पे जो खर्चा आता है। तो अब सपोज अगर उसका जो केमिकल इंजीनियर है वो कह रहा है कि अगर हम मॉडिफिकेशन कर लें ना स्ट्रक्चर में, सो फिर हम 5,000 हर साल एक्स्ट्रा जो है वो अर्न कर सकते हैं अगर हम मॉडिफिकेशन कर ले। तो आप देखें ना, आप जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उस पर तो खर्चा आएगा ना। सो सी हाउ मच ही विल स्पेंड, कितना उसने खर्चा करना होगा कि वो जो
खर्चा कर रहे हैं ना कि वो अमाउंट जो है वो 5 साल में रिकवर हो जाए। समझ आ रहा है इस पॉइंट की? सी अगर वो मॉडिफिकेशन कर लेना ट्रीटमेंट प्लांट में तो ये पॉइंट तो क्लियर है कि 5000 आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगा, लेकिन आप जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उस पर आपने सम अमाउंट स्पेंड करना होगा ना। तो उसका मतलब ये है कि कितना अमाउंट वो आज स्पेंड कर लें कि 5 साल बाद वो रिकवर हो जाए। तो सी आज जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं उस पे आपने प्रॉफिट रेट काउंट करना होगा। मीन अगर आप वो अमाउंट स्पेंड करें तो वो अमाउंट तो आपसे चला गया ना, वो अमाउंट तो आप किसी जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकते थे बिजनेस में, जहां से आपको जो है अर्निंग के चांसेस थे। तो आप जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं ना उसके ऊपर आपने अर्निंग रेट भी काउंट करना है। सो हाउ मच he will have to spend today so to recover that amount in 5 years at a NVT of 5000 per year। so इसका मतलब क्या है? अगर नोटेशनली हम इसको रिप्रेजेंट कर लेना, सी प्रेजेंट हमने फाइंड करना है, NVT is given at interest rate of I for period N। so अब पीरियड क्या है हमारा? 5 years है। इंटरेस्ट रेट क्या है? 10% है। सो 10% इंटरेस्ट टेबल से और 5 इयर्स के लिए इस कॉलम से आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा, उस फैक्टर को 5000 से मल्टीप्लाई कर लें। सी वो फैक्टर जो है 3.7908 आएगा। सो टुडे यू विल हैव टू इन्वेस्ट $18,954, $18,950 अप्रोक्सीमेटली इसके साथ इक्विवेलेंट है। तो अगर आज आप इतना स्पेंड कर लें तो 5 साल में वो रिकवर हो जाएंगे, और 5 साल बाद आपको जो अर्निंग मिलेगा ना ये 5000 पर ईयर के हिसाब से, वो आपका फिर फेवर प्रॉफिट होगा उस मॉडिफिकेशन की वजह से। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा, सोल्यूशन उसका जस्ट 1 स्टेप है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, so that was the relationship between the present amount and the NVT, present and NVT। now we have future and NVT, एक्सक्यूज मी future सर, and जी सर ये 10% इंटरेस्ट जो है इसमें ये 5000 जो हमें जो एक्स्ट्रा मिलते हैं इस पे 10% इंटरेस्ट है, या जो इसकी कुल अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं इस पे? नहीं, अगर आप सपोज ये अमाउंट आप मॉडिफिकेशन पे लगाए ना तो ये अमाउंट तो आपसे चला गया, यस सर। और दूसरी साइड पे अगर ये अमाउंट आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करते थे ना तो आपको 10% वहां से प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन ये अमाउंट आपने जो है बंद कर दी। ठीक है, तो वो यहाँ इस पे काउंट हो रहा है, इस पे काउंट हो रहा है। ठीक है, ओके सर। now we have the relationship between the future amount and the NVT। so just understand its notation। we will have to find the NVT, future amount will be given at interest rate I for this period, or we will have to find the future amount, NVT will be given at interest rate I for n periods। also you can understand it graphically here that NVT is given and we are interested to find out its future value, and here the future value is given and we have to find out its NVT। okay, अब देखें how much will you have in 40 year if you save 3000 each year and your account earns 8%। simplest example है, मीन अगर हर साल आप 3000 जो है वो अपनी सपोज सैलरी से साइड पे करके इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल 8% इंटरेस्ट रेट पे, तो 40 साल बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा? सो सी एनुअली हर साल you are investing $3000 at interest rate of 8%, so after 40 years how much you will have? so we have to find out the future amount,
NVT is given, interest rate is given, N is given. So if given A at interest rate I for N periods. Okay, so directly you can take the value from table के 8% टेबल से और 40 साल उसका जो पीरियड है वहां पे आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। तो ये फैक्टर एनवीटी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लें, सो यू विल हैव $7,77,170 आफ्टर 40 ईयर्स। अब देखें ना, अब सपोज अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और हर साल आप जस्ट $3,000 जो है वो सजाद खान आप अलमारी में रख रहे हैं ना, तो फिर 40 साल बाद आपके पास कितने होंगे? 1,20,000। समझ आ रहे हैं? सपोज अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, सपोज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना, और हर साल आप सैलरी से 3,000 छुपा के साइड पे रख रहे हैं, तो 40 साल बाद आपके पास 1,20,000 होंगे। Exactly. और अगर हर साल आप सैलरी से सपोज 3 साल निकाल के उसको इन्वेस्ट कर ले बिजनेस में, फिर नेक्स्ट ईयर और 3,000 इन्वेस्ट कर लें, फिर नेक्स्ट ईयर और 3,000 इन्वेस्ट कर लें, तो पहले से भी प्रॉफिट आ रहा है और आपका जो बेसिक अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो 40 साल बाद आपके पास 7,77,000 होंगे। सो सी दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनवीटी। ठीक है, फ्यूचर गिवन एनवीटी। क्लियर? कैश फ्लो आकर इन कंसेक्यूटिव इंटरेस्ट पीरियड। ठीक है, मीन हर साल आप ऐड कर रहे हैं सम गिवन अमाउंट। लास्ट कैश फ्लो जो होगा इन आकर इन सेम पीरियड इज एफ, मीन लास्ट पीरियड में जो कैश फ्लो होगा ना वो आपका फ्यूचर अमाउंट होगा कि आपको कितना टोटल अमाउंट आपके पास होगा। ठीक है, नाउ सी फ्यूचर इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द एनवीटी। अब देखें ना, अगर 25 साल बाद आपको $10,00,000 चाहिए, 25 साल बाद आपको $10,00,000 चाहिए, तो हर साल आपने कितना डिपॉजिट करना होगा, कितना इन्वेस्ट करना होगा अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है? मीन 10 साल बाद, सॉरी 25 साल बाद आपको $10,00,000 चाहिए, तो हर साल आपने कितना, अगर इन्वेस्टमेंट से आपको 10% प्रॉफिट भी मिल रहा है। सो देखिए ना, वी हैव टू फाइंड आउट द एनुअल, फ्यूचर इज गिवन एट इंटरेस्ट रेट आई फॉर 25 years. So again you can take this value from the table, 10% इंटरेस्ट टेबल से 25 ईयर पीरियड पे आप ये वैल्यू ले लें और फ्यूचर के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो हर साल अगर आप $10,200 इन्वेस्ट कर लेना, हर साल आप इतना इतना अमाउंट उस इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करते जाएं और आपको जो है 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 25 साल बाद आपके पास $10,00,000 होंगे। अब देखें, अगर 25 साल बाद आपको $10,00,000 चाहिए, तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अर्निंग आपको नहीं मिल रहा, तो फिर हर साल आपने कितना डिपॉजिट करना होगा? $40,000। तो दोनों में जस्ट डिफरेंस रखें ना, कि अगर आप हर साल सम फिक्स्ड अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते जाएं और उसके साथ वो अर्निंग भी ऐड हो रहा है, तो 25 साल बाद आपके पास $10,00,000 होंगे। So that is to find out the NVT if future amount is given. The previous one was to find out the future amount if NVT is given. Clear? Hey. Yes sir, clear है sir. ठीक है, अच्छा ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर है। An industrial engineer made a modification to a manufacturing processing that will save our company $10,000 per year at an interest rate of 8% per year. How much will be saving amount in 7 years? See,
एक इंजीनियर है ना, उसने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, तो 10,000 उसका बचत होगा हर साल ड्यू टू दैट मॉडिफिकेशन। और वो जो बचत होगा ना, वो हर साल जो बचत आएगा ना, सपोज अगर एक साल में 10,000 बचत हो गई और वो उसने 8% पे इन्वेस्ट कर दी, फिर नेक्स्ट ईयर और 10,000 सेविंग होगी, वो आप भी इन्वेस्ट कर ले, फिर नेक्स्ट ईयर वो भी इन्वेस्ट कर ले, तो 7 साल बाद टोटल सेविंग कितना होगा? अगर डायरेक्टली आप कर लेना, अगर 10,000 आप हर साल सेव कर रहे हैं, तो 7 ईयर बाद टोटल सेविंग कितना होगा जी? कितना होगा? सपोज अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करें ना, डायरेक्टली हर साल आपको 10,000 सेविंग मिल रहा है, तो 7 साल बाद 70,000 होगा ना। और अगर हर साल आपको जो 10,000 यस मिल सर। रहा है उसको इन्वेस्ट भी कर ले 8% पे, तो वो उस पे वो अर्निंग भी आएगा, हर साल वो अर्निंग भी आएगा। तो देखिए ना, ये एनवीटी गिवन है, ये इंटरेस्ट है, और ये पीरियड है, तो फ्यूचर अमाउंट कितना होगा? सो फ्यूचर गिवन ए, इंटरेस्ट इज 8% 89,000 इन 7, तो ये फैक्टर आ जाएगा, या फार्मूला भी गिवन है, वो आप ये देखें ना, डायरेक्टली इस फार्मूला में पुट कर लें। ठीक है, तो आपके पास जो होगा वो $89,228 होंगे। ठीक है, तो ये अभी तक हमने 4 चीजें डिस्कस की। इफ सम प्रेजेंट अमाउंट इज गिवन, सो व्हाट विल बी इट्स फ्यूचर। ठीक है, एंड इफ सम फ्यूचर अमाउंट इज गिवन, सो व्हाट विल बी इट्स प्रेजेंट वैल्यू। दो ये हो गए। और फिर एक है कि एनवीटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट अमाउंट, और एक है फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट अमाउंट। ओके, अच्छा, इंजीनियरिंग इकोनॉमी दैट इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो फार्मूलाज हमने डिस्कस की या जो प्रोसीजर्स हमने डिस्कस की, so we will have to do the decisions based on that investment। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर ले और आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो इतने साल बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा। तो that decision making based on the return that a given project will produce। ठीक है, जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन आप ओपन कर रहे हैं, एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं, कंपनी ओपन कर रही है, तो first you will invest and it will give you in return some earnings, some profit, some in interest. So whether a proposed capital investment and its associated expenditures can be covered by revenue over time in addition to a return on the capital. Okay, I mean ये दो चीजें होती है ना कि how much you have invested, how much capital you have invested, हर साल आपको रिवेन्यू कितना मिल रहा है, उसको आप फर्दरली इन्वेस्ट करते जाएं, उससे कितना रेट आप रिवेन्यू मिल रहा है। सो आप जस्ट कैलकुलेट कर ले कि 30 साल बाद आपकी बिजनेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यही जो हमने डिस्कस की, दीज आर द बेसिक इक्वेशंस। एक्चुअली हम देख रहे हैं ना कि बीइंग एन इंजीनियर या इस कोर्स का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप किस तरह इवोल्वेट करेंगे बेस्ड ऑन इकोनॉमी, उसका इकोनॉमिकल एनालिसिस किस तरह होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली बेटर है। तो पहले आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स को हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, किस बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक और चीज ये होती है कि एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, वन इज द पब्लिक प्रोजेक्ट, सेकंड वन वी हैव द प्राइवेट प्रोजेक्ट। पब्लिक प्रोजेक्ट मीन जो गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, और प्राइवेट जो पर्सनल बिजनेसेस टाइप के होते हैं। सो ऑब्वियसली द पब्लिक प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज होता है, और प्राइवेट का जो होता है वो स्मॉल मीडियम होता है। सिमिलरली पब्लिक प्रोजेक्ट्स का जो लाइफ होता है वो 30 to 50 ईयर्स होता है, और जो पर्सनल प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 2 to 25 ईयर्स के होते हैं। ये जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो इकोनॉमिकल एनालिसिस के साथ इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस।
पब्लिक प्रोजेक्ट जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना। ज्यादातर अक्सर गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वो नॉन प्रॉफिट होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं, जाहिर बात है वो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करें, एक प्रोजेक्ट करें, तो आपने उसमें प्रॉफिट ही देखना होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की जो फंडिंग होती है वो टैक्सेस और इस चीज से होते हैं। और अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो या आपने लोन लेना होगा किसी से, ठीक है। पब्लिक प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट रेट लोअर होते हैं, प्राइवेट का हाइयर होता है। जस्ट सपोज अगर आप एक गवर्नमेंट बैंक से कर्जा ले रहे हो और एक प्राइवेट बैंक से कर्जा ले रहे हो, तो एक प्राइवेट बिजनेस है, एक पब्लिक बिजनेस है, एक गवर्नमेंटल बिजनेस है, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। तो इन चीजों की बेस पे फिर हम डिसीजन करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट। अगेन अगर आपके पास दो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, अगेन आप उसको कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी। या अगर एक पब्लिक है एक प्राइवेट है, अगेन यू विल हैव टू डू द डिसीजन बेस्ड ऑन इकोनॉमी, ठीक है। सो देखिए, नाउ दैट आर द कंपैरिजन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। सो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि how you will analyze या how you will evaluate the two different project in term of money। तो सी सपोज अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है और सेम सी प्रोजेक्ट हम क्यों करते हैं कि एक प्रॉब्लम को हम सेटिस्फाई कर लेना। एक क्वेश्चन होता है, एक प्रॉब्लम होता है, उसको हमने सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए आपने कोई डिजाइनिंग करना होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, कोई प्रोजेक्ट करना होगा। तो सपोज अगर सेम प्रॉब्लम जो है दो डिफरेंट प्रोजेक्ट से, दो डिफरेंट डिजाइन से, दो डिफरेंट सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो सकता है, तो फिर आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। जाहिर बात है यू विल गो फॉर इकोनॉमी के, कौन सा इकोनॉमिकल होगा ना। सॉल्यूशन तो एक है, वो सॉल्यूशन तो दोनों से सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली किससे हो रहा है। तो फिर आपने देखना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका टोटल वैल्यू आपने प्रेजेंट अमाउंट में कैलकुलेट करना होगा कि प्रेजेंटली उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी और प्रेजेंटली इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी। देन यू कैन डिसाइड कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकल होगा। दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वर्थ मेथड, कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी कैश फ्लो है, आउटफ्लो है, इनफ्लो है, उसको आप क्या कर लें, प्रेजेंट अमाउंट में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। और एक है एनुअल वर्थ मेथड, कि जो भी कैश फ्लोज है, इनफ्लोज है या आउटफ्लोज है, उसको आप एनवीटी में कन्वर्ट कर लें, या इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न में कन्वर्ट कर ले, या बेनिफिट कॉस्ट रेशो होता है ना, कि अगर सपोज दो प्रोजेक्ट हैं तो एक प्रोजेक्ट से बेनिफिट कितना मिल रहा है और उसका कॉस्ट कितना है, दूसरा प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या है और कॉस्ट कितना है, तो दोनों का रेशो फाइंड कर ले, इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो कहते हैं। सो देन यू कैन डिसाइड कि जिसका बेनिफिट कॉस्ट रेशो ज्यादा होगा वो ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। सो ये चार मेथड जो है, दीज आर यूज्ड फॉर द analysis of the different design or different processes or different projects, कि कौन सा जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन को देखें, all costs or benefits or all cash flows will be converted into present amount। जिस तरह हमने जो डिस्कस की ना, कि सपोज एनुअली आपको इतना इनकम आ रहा है, एनुअली आपको इतना इनकम आ रहा है 20 साल तक, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, वो टोटल मीन हर साल आपको इनकम आ रहा है ना, 10,000 आज आ रहा है, 10,000 एक साल बाद आएगा, 10,000 दूसरे साल बाद आएगा, और 20 साल तक आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो 20 साल तक हर साल आपको जो रिवेन्यू आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर ले कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, आज उसकी वैल्यू क्या होगी। और दूसरा यह है कि सपोज आप जो हर साल इस पे जो खर्चा आएगा, उस पे जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी जो एक्सपेंसेस होंगे,
वो भी आप प्रेजेंट अमाउंट में कन्वर्ट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा ना कि 20 साल तक आप जो एक्सपेंसेस करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, और 20 साल तक आपको जो रिवेन्यू आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो देन यू कैन फाइंड आउट कि एक्सपेंसेस कितने होंगे टोटल और रेवेन्यू कितना होगा। ठीक है, सेम बेस ईयर मीन एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का जो ईयर है वो सेम होगा। डिस्काउंट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, दैट विल बी आल्सो अप्लाइड कॉन्स्टेंटली। पीरियड ऑफ एनालिसिस भी सेम होंगे। नाउ द प्रोजेक्ट विद प्रेजेंट पॉजिटिव प्रेजेंट वर्थ टू बी कंसिडर। नाउ जिस प्रोजेक्ट का देखें ना, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस की कि टोटल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में, अगर प्रोजेक्ट का जो लाइफ है वो 20 साल है, तो 20 साल में आपको वहां से जो रिवेन्यू आ रहा है उस रिवेन्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, सो दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट, प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बेनिफिट्स। अच्छा, ये पूरी 20 साल आप प्रोजेक्ट में आपसे जो एक्सपेंसेस होंगे वो आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लें, सो दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंसेस और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट। तो इसका आप डिफरेंस ले लें, तो अगर इसका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली ओके है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके एक्सपेंसेस रिवेन्यू से ज्यादा है। ठीक है, देखिए एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर यहां पे है तो लेट मी दिस वन, सी अल्टरनेटिव एक्स मीन दो अल्टरनेटिव्स है ना, हमने कंपैरिजन करना है। अल्टरनेटिव एक्स हैज फर्स्ट कास्ट ऑफ $20,000 एंड ऑपरेटिंग कास्ट जो है वो 9,000 पर ईयर है, और आखिर में आपको 5,000 सल्वेग वैल्यू मिलेगा उसका। एक अल्टरनेटिव ये है। सपोज अगर आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सो एट द स्टार्ट 20,000 उस पे खर्चा आएगा, और हर साल 9,000 उसका ऑपरेटिंग खर्चा होगा, और 5 साल बाद फिर आप उसको जब सेल करेंगे स्क्रैप में तो 5,000 आपको रिवेन्यू मिलेगा। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप 35,000 इन्वेस्ट कर ले स्टार्ट में, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, 4,000 होगा, और उसकी सल्वेग वैल्यू क्या होगी, 7,000 होगी। दो अल्टरनेटिव्स है ना। फर्स्ट अल्टरनेटिव की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, 20,000 है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका ज्यादा है। दूसरी अल्टरनेटिव में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका कम है। तो अब हमने कंपैरिजन करना है ना कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने करना होगा। 5 ईयर, दोनों की लाइफ टाइम जो है वो 5 ईयर है, और मैक्सिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इसको कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे। इसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो 20% है। ठीक है, तो अब देखें फर्स्ट अल्टरनेटिव का आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें, और सेकंड अल्टरनेटिव का आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें, प्रेजेंट वर्थ फाइंड कर लें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो बेटर है। ये अभी तक यहाँ पे ना देखे ना। सी, जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है उसका कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर लें। इनिशियली कितना इन्वेस्ट करना होगा, 20,000। ठीक है, हर साल 9,000 ऑपरेटिंग खर्चा होगा। अब देखें ना, ये जो है ये एनवीटी है, 9,000 हर साल 9,000
उसका ऑपरेटिंग कास्ट होगा, और 5 साल बाद आपको 5,000 उससे क्या मिलेगा, स्क्रैप से उसकी सल्वेज वैल्यू मिलेगी। ये डायग्राम क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब देखें ना, स्टार्ट ये 0 पीरियड है, ये प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंटली आपने कितना इन्वेस्ट करना है, 20,000, और हर साल फिर आपने 9,000 इन्वेस्ट करने होंगे ना, हर साल आपने 9,000 इन्वेस्ट करने होंगे। तो ये क्या है, एनवीटी है। सो हमने क्या फाइंड करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट गिवन एनवीटी एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% फॉर 5 ईयर, वो फैक्टर बन गया। याद है जो स्टार्ट में हमने डिस्कस की 2-3 स्लाइड पहले, एनवीटी गिवन है यस ना, सर, वो सर। एग्जैक्टली, एनवीटी गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, 5 गिवन है। तो हमने इस एनवीटी को प्रेजेंट अमाउंट में कन्वर्ट करना है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, एंड डेट इज आल्सो एक्सपेंसेस, तो इसको आप माइनस में रखें। तो 12% जो इंटरेस्ट टेबल होगा उससे 5 पीरियड्स पे 5 से, और इस कॉलम से आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा, उस फैक्टर को 9,000 से मल्टीप्लाई कर लें और यहां पे लिख के, तो ये हर साल जो 9,000 आप इन्वेस्ट करेंगे ना एनवीटी, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। अच्छा, एट द एंड 5,000 आपको रिवेन्यू मिल रहा है, तो ये प्लस होगा, लेकिन ये 5,000 आपको कब मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। ये फ्यूचर अमाउंट है, तो उसका आपने क्या करना है, प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है ना, ये पॉइंट याद रखें। सो व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट फ्यूचर, अगर इंटरेस्ट 12% हो तो 5 साल हो, मीन ये 5,000 तो आपको 5 साल बाद मिलेंगे ना, तो करंटली उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगेन स्टार्ट में हमने जो फर्स्ट फार्मूला किया था कि अगर फ्यूचर गिवन है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 12% इंटरेस्ट है, 5 साल जो है उसका पीरियड है, तो ये यहां से इसको अगर आप कर लें, सो यू विल गेट 49,606, मीन कि इस प्रोजेक्ट पे जो टोटल कास्ट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उस कास्ट की प्रेजेंट वैल्यू $49,000 है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा अल्टरनेटिव को देखें। दूसरा अल्टरनेटिव का कैश फ्लो डायग्राम क्या है कि एट द स्टार्ट यू विल हैव इन्वेस्ट 35,000, और फिर हर साल मीन 1 2 3 4 5, हर साल ऑपरेटिंग कास्ट कितना होगा, 4,000 होगा, एंड एट द एंड आपको 7,000 उससे क्या मिलेगा, सल्वेज वैल्यू। अच्छा, तो अब ये सब जो है प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेना, तो ये 35 तो प्रेजेंट में है, मीन ये जो है ये आपके एक्सपेंसेस है, तो 35,000 है, माइनस हर साल अगर आप 4,000 एक्सपेंसेस हैं, तो ये एनवीटी हो गई ना, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ये आएगा। अच्छा, 5 साल बाद आपको 7,000 मिलेगा स्क्रैप से, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट फ्यूचर अमाउंट, और ये बेनिफिट है ना, टाइप ऑफ रिवेन्यू है, तो ये प्लस होगा। ठीक है, उसी इस प्रोजेक्ट का टोटल कास्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज $45,000। ठीक है, $45,000। तो ये आपका आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप इसको सेलेक्ट कर लें। इनिशियली आप 35,000 इन्वेस्ट कर लें, हर साल 4,000 उसका ऑपरेटिंग कास्ट होगा, एट द एंड आपको 7,000 मिलेगा। अगर इसके बजाय आप आज 20,000 इन्वेस्ट कर लें और 9,000 उसका ऑपरेटिंग कास्ट हो,
समझ आ गया कि कौन सा अल्टरनेटिव जो है अब बेटर होगा? यस सर, समझ आ गई। समझ आया सर क्लियर। अच्छा, टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रपोजल Excuse me, sir. इसको जी जी सर उसी स्लाइड पे जाए, कहाँ पे? एग्जाम करवा लीजिए। ये वाले? नहीं, इससे पहले वाला। अच्छा, एग्जाम्पल ये इससे पहले सर एग्जाम्पल अभी के बाद जी में। जी ये जी सर ये MARR ये किस के लिए है सर? ये होता है मैक्सिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। मीन Okay. इसमें ये अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इससे मैक्सिममली आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट में काउंट करना होगा ना। Yes, sir. ठीक है, अगर ये अमाउंट आप यहाँ पे एक्सपेंड ना करें ना इस चीजों की खरीदने में, और उसको अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले तो आपको वहां से 12% प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, Yes, सर और ये हमें जो सेल वैल्यू मिलती है ना सर, वो तो यहाँ पे क्लियर है कि ये मतलब 7,000 मिलेगी ना सर। तो इसके साथ फिर ये फैक्टर हमने क्यों मल्टीप्लाई किए? ये तो इंक्रीज नहीं हो रही ना, ये तो लास्ट में हमें मिलेगी। तो उसको आप फ्यूचर में मिलेगा ना, उसको आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेके 5 साल बाद अगर 7,000 है तो उसकी आज उसकी कीमत क्या होगी? ओके सर। अगर 5 साल बाद आपके पास 7,000 रुपए है ना, तो आज उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट कितना होगा? ठीक है, Yes. तो कन्वर्ट करना है ना। Excuse me, sir. प्रेजेंट जी, प्रेजेंट गिवन एफ इज गिवन। जी हसीब, सर ये तो इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है ना सर। हाँ, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है ना। ये जो 12% होता है ना, ये सर ये इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न आपको कितना मिल सकता है, इस पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी काउंटेड है। ठीक है, Okay. अगर गिवन होता है कि सपोज द अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज 16%, बट इन्फ्लेशन जो है वो 4% आएगा, तो नेट अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? वो 12% हो जाएगा, वो उसमें इंक्लूडेड है। ओके सर। जी हसीब, सर ये फर्स्ट कॉस्ट ऑफ जो हमारे पास है 20,000 और दूसरी 35,000, सर इसको हम नेगेटिव क्यों लेते हैं? इन ये एक्सपेंसेस है ना। यस एट द एंड आपको एक रिवेन्यू भी मिल रहा है ना। तो हमने डिस्कस किया था ना कि जो आउटफ्लो है वो निगेटिव होंगे और जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव होंगे। तो हम कंपेयर करें ना कि टोटल आउटफ्लो कितना होगा। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में टोटल आउटफ्लो, नेगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंटिंग आउटफ्लो, 49,000 होगा और यहाँ पे 45,000 होगा। ठीक है, ओके सर, सर क्लियर। अब देखें ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखें। अब अगर यहाँ पे प्लस आ रहा होता तो फिर कौन सा अल्टरनेटिव बेटर था? फर्स्ट वन। क्लियर? ओके सर। जी मुराद, ओके सर क्लियर है सर। हाँ, ये साइन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग। हाँ, इसमें आप लोगों ने ये पॉइंट रखना है कि अगर माइनस आ जाए तो देन यू विल हैव टू गो पर लोअर वैल्यू। नेगेटिव अगर है, अगर पॉजिटिव है तो फिर आपने हायर वैल्यू पे जाना होगा। ठीक है, बिकॉज उससे फिर फायदा ज्यादा मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि फायदा आपको ज्यादा मिल रहा है, रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, सो दो टर्म्स होते हैं ना, रेवेन्यू है और कास्ट है। ठीक है, कि जो कैश इनफ्लोज है और कैश आउटफ्लोज है। सो बेटरली यू विल सॉल्व दी या यू विल डू दी प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस अगर प्रॉपरली आप उसका कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर लें, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा ना। प्रेजेंट कितना है, एनवीटी कितनी है, फ्यूचर कितनी है। तो एनवीटी और फ्यूचर को बी प्रेजेंट में कन्वर्ट करके प्लस माइनस कर ले। ठीक है, कन्वर्ट ऑल कैश फ्लोज टू प्रेजेंट वर्थ, प्रीसीड कास्ट बाय माइनस साइन। मीन जो जा रहे हैं ना, जो प्रीसीड्स हैं, जो एक्सपेंसेस है वो माइनस से रिप्रेजेंट कर लें और जो रेवेन्यू है वो प्लस से कर लें। सो पर वन प्रोजेक्ट ए प्रेजेंट वर्थ इज ग्रेटर देन 0, इट इज जस्टिफाइड। मीन अगर एक प्रोजेक्ट है ना और या एक बिजनेस है, आपने देखना है कि ये बिजनेस जो है
ये प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा। तो अब देखें ना, एक बिजनेस है, तो आप देखें कि इनिशियली आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर दी, हर साल आपको कितना रिवेन्यू मिल रहा है, हर साल उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, और एट द एंड अगर बिजनेस आप खत्म कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा। समझ आ रहा है? तो एक ये होगा कि इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट कर दी, इसका नेगेटिव साइन होगा। हर साल आपको कितना रिवेन्यू मिल रहा है ना, ये एनवीटी है, इसको आपने प्रेजेंट में कन्वर्ट करना होगा। एनवीटी गिवन है, प्रेजेंट में कन्वर्ट कर ले, लेकिन साइन उसका प्लस होगा। हर साल जो ऑपरेटिंग है, कास्ट है, एक्सपेंसेस है, अगेन ये एनवीटी है ना, इसको आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर ले, लेकिन साइन उसका नेगेटिव होगा। एट द एंड अगर आप बिजनेस खत्म कर रहे हैं 10 साल बाद, तो आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा एट द एंड वो फ्यूचर में होगा ना, 10 साल बाद होगा, लेकिन उसको भी आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर ले और उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। सो ये सिंपली जस्ट एड और माइनस कर लेना, तो अगर एंड रिजल्ट आपके पास क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो मतलब क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है। और अगर ये निगेटिव आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि बिजनेस क्या है, लॉस में होगा पर सिंगल प्रोजेक्ट। क्लियर? अच्छा, अगर दो प्रोजेक्ट हैं तो फिर आपने क्या करना होगा, देखना होगा कि अगर दोनों प्रोजेक्ट की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू अगर 0 से कम आ जाए, तो फिर बेटरली प्रोजेक्ट कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी ना, जिस तरह हमने ये एग्जांपल कर दी। और अगर दोनों प्रोजेक्ट के प्रेजेंट वर्थ पॉजिटिव आ जाए, तो फिर आपने कौन सा सेलेक्ट करना होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। याद रखें, ठीक है। नाउ सी, एक एग्जांपल है, 2 अल्टरनेटिव्स हैं, तो नहीं बल्कि 4 अल्टरनेटिव्स हैं। For the alternative shown below, which should be selected if they are mutually exclusive and independent? Suppose अगर ये 4 प्रोजेक्ट्स है, तो इसमें बेटर प्रोजेक्ट कौन सा होगा। मीन आप काइंडली आंसर को ना देके ऊपर से डिसाइड कर ले जी। आंसर तो गिवन है, तो आप जाहिर बात है ये से करेंगे ना। तो अगर चारों को आप कंपैरेटिवली कर लेना, तो इसमें बेटर कौन सा है, 30,000 वाला है। और अगर इंडिपेंडेंटली आप कर लें, तो फिर आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ए, बी और डी, ये ठीक है। सी जो है ये लॉस में है। समझ आ गया? यस सर। अच्छा, लास्ट एक एग्जांपल करते हैं आपको फिर वो क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट वर्थ मेथड। सी, an investment of 10,000 can be made that will produce annual revenue of $5,310 for 5 years, and the 2,000 will be the recovery value, that is the salvage value at the end of year 5। मीन 10,000 आप अभी इन्वेस्ट कर लेना, 5,310 हर साल आपको प्रॉफिट मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट 2,000 उसकी वैल्यू होगी फिर, लेकिन 3,000 हर साल उसके एक्सपेंसेस है। सो द कंपनी इज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर ये 10% पे आप उसकी एनालिसिस कर लें, 10% इंटरेस्ट रेट पे, अगर ये 10% इंटरेस्ट रेट पे उसकी प्रेजेंट वर्थ पॉजिटिव आ जाए, देन द कंपनी विल एक्सेप्ट इट। तो अब उसकी आप एनालिसिस कर ले। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छा सर जी, सर ये जो है सर, ये ईयरली बेसिस पर सर ही होता है सर। ये अगर मंथली पर हुआ तो हम फिर क्या करेंगे सर? टेबल में तो नहीं, है ही पीरियड नहीं। पीरियड पीरियड आपका मंथ होगा ना, ये इंटरेस्ट भी मंथली होगा, फिर वो पीरियड जस्ट मंथ होगा या ईयर होगा, ये इशू नहीं है उसमें। लेकिन इंटरेस्ट का ये जो है, अगर ये 10% पर ईयर है ना,
तो इसको भी फिर अपने मंथ में कन्वर्ट करना होगा। इस 10% को 12 पे डिवाइड कर ले। फिर ये स्टार्ट में एक स्लाइड था, उसमें आप ये देखें, सेम बेस ईयर या सेम पीरियड ऑफ एनालिसिस, इंटरेस्ट का, रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का पीरियड सेम होगा, या मंथ होगा या ईयर होगा। यार इसके साथ आप कंफ्यूज ना हो। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले क्या करें, कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर बिल्कुल इजी हो जाता है। कितने, एक लाइन ड्रॉ कर लें, 5 साल है तो उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें। ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मीन 0, ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर, एंड ऑफ सेकंड ईयर, स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, start of fourth year, end of fourth year, start of fifth year, that is end of fifth year। समझ आ रहे हैं? तो ये हमारा n होगा। अच्छा, at time 0 we have to invest $10,000, 10K mean $10,000 है, ठीक है। हर साल आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? हर साल 5,310, 5,310। आखिर साल एट द एंड कितना मिलेगा? 2,000 स्क्रैप से मिलेगा, 5,310 प्रॉफिट होगा, तो 7,310 होगा, ठीक है। और हर साल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर 3,000 उसके क्या होंगे? एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपली ये तो प्रेजेंट अमाउंट है ना, और ये एक्सपेंसेस है, तो -10,000 तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये एनवीटी है ना, एनवीटी है लेकिन रेवेन्यू है, तो ये एनवीटी 5 साल की जो एनवीटी है, इसको आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर ले। एन क्या है हमारा? एन 5 है, इंटरेस्ट रेट 10% है, एनवीटी ये है, इसको आप कन्वर्ट कर ले प्रेजेंट में। इस तरह होगा ना, प्रेजेंट गिवन ए एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, और ये प्लस होगा। अच्छा, सिमिलरली 3,000 एक्सपेंसेस है, 5 साल के लिए है, 10% पे है, तो ये एनवीटी आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लें, ये नेगेटिव होगा। और एट द एंड आपको जो 2,000 मिलेगा वो फ्यूचर है, तो वो फ्यूचर 2,000 जो है वो भी प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लें, और ये 8 करना होगा बिकॉज ये भी इनफ्लो है। तो यहां से अगर आपके ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, द प्रोजेक्ट इज ओके, विल बी एक्सेप्टेबल बाय द कंपनी। अब देखें, ये आ रहा है ना, जो एनुअल रेवेन्यू है, एनवीटी मीन हर साल ये मिल रहा है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 10% इंटरेस्ट पे 5 साल पे ये आएगा। जस्ट 10% इंटरेस्ट टेबल से 5 साल पीरियड पे आप वो फैक्टर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये कैश इनफ्लो हो गया। सिमिलरली आखिर में आपको जो 2,000 मिलेगा ना फ्यूचर में, उसकी प्रेजेंट अमाउंट ये होगी 1,242। सिमिलरली स्टार्ट में 10,000 आपने जो इन्वेस्टमेंट कर ली वो तो पेवर 10,000 है, और 3,000 हर साल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो 5 साल के लिए अगर हर साल आप 3,000 इन्वेस्ट करते तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 11,372 होगी। तो टोटल एक्सपेंसेस इतने होंगे और टोटल रेवेन्यू इतना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 0। सो ये एनालिसिस हमने 10% पे कर दिया ना, तो 10% पे अगर प्रेजेंट वर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल। सपोज वही करना, समझ आ गया? यस सर, यस सर। यस सर।
Yes, तो sir. बाकी जो मेथड है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि एनुअल बेसिस पे आप प्रोजेक्ट के एनालिसिस किस तरह करेंगे। अगेन समराइज करते हैं, आज का जो लेक्चर था वो ये था कि सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आपके पास प्रेजेंट सम अमाउंट है उसको आप इन्वेस्ट कर लें, तो इन साल बाद और इतने प्रॉफिट रेट पे आपके पास कितना अमाउंट होगा। फर्स्ट इक्वेशन ये था। सेकंड इक्वेशन ये है कि अगर फ्यूचर में आपके पास इतना अमाउंट चाहिए इतने साल बाद और आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो आज आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा प्रेजेंट। सिमिलरली फिर हमने एनवीटी और फ्यूचर और एनवीटी और प्रेजेंट का कर दिया। ठीक है, फिर हम प्रोजेक्ट के एनालिसिस करते हैं। तो प्रोजेक्ट में जो एक्सपेंसेस होंगे और जो रिवेन्यू होगा, जो इनफ्लो होगा और जो आउटफ्लो होगा, वो सारे जो हैं आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर ले कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो अगर एक प्रोजेक्ट है तो जिस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वर्थ ग्रेटर देन 0 हो तो वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली ओके होगा। और अगर किसी प्रोजेक्ट की सिंगल प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वर्थ लेस देन 0 है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, अगर मोर देन 1 प्रोजेक्ट है, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट हैं, तो फिर आपने देखना होगा कि किस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव प्रेजेंट वर्थ ज्यादा है, वो फिर एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट और lecture number 4.